Hello students, how are you all? Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue our chapter number 11, that is cash book, and we are on a new topic, that is petty cash book. So firstly, before beginning the topic, let us understand the meaning petty and cash book. Petty means small. Petty means small, and cash book means you know very well. It is a subsidiary book in which we record the cash and bank transaction. It is a subsidiary book in which we record the cash and bank transaction. So what do you mean by petty cash book? So petty cash book is a book in which we record the small expenses. For example, we can take example of father and mother. So in house there are many small expenses done by mother, like vegetables and fruits. So father will give the amount to mother, and mother will do all the small expenses, and father will busy on the main work. So this is an example of petty cash book. That for the petty expenses we will not indulge the main cashier, but we will allot the work to the junior cashier. So let us understand, in every business, whatever be the size, large number of small payments are there, like postage, stationery, bus fare, taxi fare and cartage. These payments are generally repetitive in nature. अब ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेपिटेटिव नेचर के होते हैं. अगर ये सारे पेमेंट्स कैशियर करें, जैसे कि घर में मेन एक्सपेंसेस अगर फादर करें, तो ये सारे मेन कैश बुक में लिखे जाएंगे, तो कैशियर के पास काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड द कैश बुक विल बिकम वेरी बल्की. और जो मेन कैश बुक है वो बहुत बल्की हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, इट इज़ यूजुअल टू अपॉइंट एन एम्प्लॉय एज अ पैटी कैशियर. तो हम एक एम्प्लॉय को पैटी कैशियर बना देते हैं. वो क्या करेगा, उसे हम 2000 या 5000 या कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट दे देंगे, और उसमें से वो स्मॉल पेमेंट्स करेगा, और इसे बोलेंगे पैटी कैश बुक. सो पैटी कैश बुक इज़ अ बुक. पैटी कैश बुक इज़ अ सेपरेट बुक मेंटेन्ड बाय द पैटी कैशियर. Petty cash book is a separate book maintained by the petty cashier for making small payments like postage, stationery, bus fare, taxi fare and cartage. तो small payments के expenses के लिए हम petty cash book बनाते हैं. Then what do you mean by impress system? A new word come in your knowledge, that is impressed system. What is impressed system? Not interest, it's impressed. Impress system में क्या होता है? For example, again we take an example of father and mother. Father gives amount to mother, like suppose 25,000. So this can we take the impressed amount. इसको हम क्या ले सकते हैं, impressed amount ले सकते हैं. Now mother will do all the small expenses like fees, like rent, like electricity, each and every. So these are the petty expenses. Father will busy in doing the main work in the office, and the mother will do all the petty expenses. फिर after the month is over, again the main cashier will give the amount to the petty cashier. Suppose if out of 25,000, 21,000 expenditure, 4,000 left. So next month 21,000 will be given by the main cashier. So under this system the petty cashier is given a definite sum. petty cashier को एक particular amount मिलेगा month के begin में, उसको impressed amount बोलेंगे. petty cashier goes on paying all the petty expenses, और petty cashier इसमें से ही सारे खर्चे करेगा और petty cash book में लिख लेगा. at the end, पीरियड के एंड होने के बाद में, मंथ के एंड होने के बाद में, पैटी कैशियर ये जो रिपोर्ट है ये मेन कैशियर को दे देगा, और मेन कैशियर उसको एग्जामिन करने के बाद में उसे अमाउंट पे कर देगा जितना उसने खर्च किया है. तो ये हम एवरी मंथ करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. पैटी कैशियर आफ्टर इंक्लूडिंग द बैलेंस, जितना उसका बैलेंस बच गया और जितना उसने खर्च किया उसको दोबारा से उतना ही बैलेंस वो कर देते हैं. यानी कि पैटी कैशियर जो है वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस करता रहता है. अब देखो इसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं पैटी कैश बुक के, गुड इम्प्रेस सिस्टम के. पैटी कैशियर शुड ऑब्टेन प्रॉपर रिसिप्ट्स. पैटी कैशियर जो है वो प्रॉपर रिसिप्ट्स उसे मिले फॉर ऑल द पेमेंट, ताकि वो पेमेंट कर सके. ऑल दीज रिसिप्ट शुड बी अरेंज डेट वाइज. जितना भी उसे मनी मिलेगा तो वो डेट वाइज रिकॉर्ड करेगा, नंबर करेगा, ताकि जब मेन कैशियर चेक करे तो इजीली चेक हो जाए. पैटी कैशियर शुड हिमसेल्फ प्रिपेयर प्रॉपर वाउचर. पैटी कैशियर भी वाउचर बना के रखे ताकि ये पता चल जाए कि कौन सी रिसिप्ट उसे नहीं मिली है.
देयर शुड बी एन अपर लिमिट, और हर पेमेंट की एक अपर लिमिट होनी चाहिए ताकि जो मेन कैशियर है वो उसको रीइम्बर्स कर सके और उसकी पॉकेट से भी ज़्यादा मनी ना जा सके। पैटी कैशियर शुड गेट द रीइम्बर्समेंट, रीइम्बर्समेंट मतलब वापस, तो पैटी कैशियर को वापस से वो अमाउंट मिल जाना चाहिए अगले महीने के खर्चों के लिए। पैटी कैशियर शुड नॉट एंटाइटल टू रिसीव एनी कैश कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बिजनेस। पैटी कैशियर कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं करेगा जो बाहर से मिलेगा, वो मेन कैशियर ही करेगा। पैटी कैशियर का काम केवल एक्सपेंडिचर करना है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इंप्रेस्ड अमाउंट को फिक्स करने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम, कि इम्प्रेस सिस्टम के क्या फ़ायदे होते हैं। तो एक फ़ायदा तो आप समझ ही गए हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने फादर मदर का एग्जांपल लिया कि जो मेन कैशियर है वो अपने मेन वर्क पर फोकस कर सकता है। सो एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम आर, फर्स्ट, कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन। इम्प्रेस सिस्टम में अमाउंट ही इतना छोटा देंगे कि पैटी कैशियर उस अमाउंट को मतलब खर्च कर ही नहीं पाएगा फालतू, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च हो ही नहीं पाएगा। तो इम्प्रेस सिस्टम से आप पैसे का मिसयूज़ नहीं कर पाओगे। कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस आर कैप्ट विद इन द लिमिट। अब हमने इसकी अपर लिमिट भी सेट कर रखी है, तो जो मेन कैशियर है उसे पता है कि पैटी कैशियर इससे ज़्यादा तो खर्च नहीं करेगा, तो उसकी लिमिट सेट हो गई है। कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर, पैटी कैशियर चाहे कितना भी एक्सपेंडिचर कर ले लेकिन मेन कैशियर उसको पूरा स्क्रूटिनी करेगा, चेक करेगा, और अगर कुछ एक्स्ट्रा वेगेंस कुछ फालतू हुआ तो उसको वो चेक करेगा। लेसर चांसेस ऑफ मिसयूज, पैटी कैशियर पैसे का मिसयूज नहीं कर पाएगा। एडवांटेजेस टू पैटी कैशियर को क्या एडवांटेज है? इम्प्रेस सिस्टम इज एडवांटेजेस टू पैटी कैशियर बिकॉज इज लायबिलिटी टू अकाउंट फॉर मनी स्पेंड कैन नेवर एक्सीड, क्योंकि जो उसकी लायबिलिटी है वो कभी भी उस इम्प्रेस्ड अमाउंट से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि उसे उतना ही स्पेंड करना है जितना उसे मिला है। सपोज उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट 2000 मिला है तो 2000 से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, उससे कम ही करेगा। पैटी कैशियर के क्या क्या एडवांटेज है? देखो, चीफ कैशियर का टाइम और मनी दोनों बच जाते हैं, टाइम और एफर्ट्स दोनों बच जाते हैं, क्योंकि पैटी कैशियर जो है स्मॉल एक्सपेंसेस डेली और रेपिटेटिव नेचर का करता है तो वो बिजी रहता है, लेकिन मेन कैशियर अपने मेन वर्क पर ध्यान दे सकता है। ईजीनेस इन पोस्टिंग, छोटे छोटे खर्चों को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर उसको लेजर में पोस्ट करना ईजी हो जाता है, बजाय कि बार बार उसको बल्कि बनाने के। ईजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक, तो स्मॉल एक्सपेंसेस को कैश बुक में एक ही साथ हम एंटर कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन पैटी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल हो जाता है क्योंकि हमने उसे बिल्कुल कम अमाउंट दिया है। लेसर चांस ऑफ फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि मेन कैश बुक उसे चेक करता है। सिंपल मेथड है, पैटी कैश बुक सबसे ईजीएस्ट कैश बुक है बनाने के लिए। सो इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर द पैटी कैश बुक। फॉर टुडे this much is okay. God bless you. Take care. Thank you so much.